কাশতে কাশতে সারা দিন চলে যাচ্ছে, গায়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, বুকে ব্যথা, পেটে ব্যথা, কিন্তু কাশি আর থামে না। गले में दर्द हुआ था तो एक हफ्ते का दवाई लेने के बाद भी मेरा पेन कम नहीं हुआ। तो जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी गले में, तो मैंने गूगल पे बेस्ट ईएनटी इन दुर्गापुर सर्च किया। মনীষা ভণ্ডাওয়াত অ্যান্ড আশিস জি, এদের কথা একটা স্পেশাল নোট দিয়ে বলবো। দে আর অ্যান পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ আইডিয়াল পেশেন্ট। আমরা যেটা চাই, পেশেন্টকে অবজার্ভ করে, তার সাথে কথা বলে, তার কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আমরা তো ডিজিজটা ডায়াগনোস করে নিই। এবারে চ্যালেঞ্জটা হয় এমন ডিজিজ যেগুলোকে ওষুধে ঠিক করা সম্ভব নয়, যেমন হচ্ছে ক্রনিক কাফ, কাশি। কাশি বেসিক্যালি ওষুধে ঠিক করা সম্ভব নয়। শুনে অবাক লাগছে? আসুন পুরো ব্যাপারটা ডিসকাস করি। কাশির বিভিন্ন কারণ থাকে। কাফ ইজ মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল। কোনো সময় একটা ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল থাকে, কোনো সময় 3টে 4টে, কোনো সময় আরো বেশি। কার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটাকে স্টপ করতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে, সেটা কোনো জায়গাতে কোনো বইয়ে লেখা থাকে না। এটা জাস্ট পেশেন্টকে বুঝে সুঝে আমাদেরকে বার করতে হয়। মনীষা, 39-year-old woman, vegetarian, patient with high arched larynx. মনীষা আমার কাছে এসেছে, অনেকবারই এসেছে, কিন্তু ও প্রথমবার যেটা এসেছিল সেটা নিয়েই আমরা আজকে ডিসকাস করব। ও তখন এসেছিল যখন পোস্ট কোভিড পিরিয়ড চলছে, আমরা তখনও মাস্ক ব্যবহার করি। আমি টুক করে ওকে মাস্কটা নামিয়ে ওর গলাটা দেখতেই আমি বুঝতে পেরে গেছিলাম যে ওর প্রবলেমটা কোথায়। ওর ল্যারিংস, শ্বাসনালী, অন্যদের থেকে উপরে। মানে এই পেশেন্টদের কি হয় যে যখনই একটা সিম্পল ফ্যারিঞ্জাইটিস বা টনসিলাইটিস হয়েছে, দ্যাট স্প্রেডস টু দ্য ল্যারিংস, ল্যারিংসকে ইনভলভ করে নেয়। ল্যারিংসকে ইনভলভ করার ফলে কাশি, গলা ব্যথা সেটা খুব বেশি হয়। মনীষার এটা বারবার হতো। মনীষাকে আমি কিছু সিম্পল ট্রিক্স অ্যাডভাইস করি, ও সেটা এত সুন্দর ফলো করে, যা বলেছি তাই করে। এই জিনিসটা পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ এন আইডিয়াল পেশেন্ট। মনীষাকে আমি প্রথম দিনই কটা জিনিস একদম বসে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে কাশি সারে কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসে তোমাকে কিছু জিনিস করতে হবে, ওষুধে কাশি সারে না। ক্রনিক কাফ মানে কাশির ট্রিটমেন্ট, ওষুধ খুব মিনিমাম, কিছুই নয়। আপনাকে একটু স্টিম নিতে হবে, উইচ ইজ ফ্রি অফ কস্ট। তার সঙ্গে খুব মিনিমাম কিছু মেডিসিন, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্য ফ্যাক্টর উইচ ইজ কজিং দ্য কাফ। মনীষার কাশি যেটা বহুদিনের ছিল সেটা ঠিক করতে আমাদের একটু সময় লাগলো, বাট ও নিয়মিত সেটা করেছে। আমাকে এবারে 2024-এ যখন এসেছে আমাকে বলল যে ম্যাম, আপনি যা আমাকে শিখিয়েছিলেন, আমার কাশি হলেই আমি স্টিম নিয়ে বসে যাই, কেটেল স্টিম। আমার মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টাইমে কোনো ওষুধ ছাড়াই সেরে যায়। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে মেয়েটা কি সুন্দর কথাটা মেনেছে, অ্যান্ড শি ইজ গেটিং দ্য রেজাল্ট। মনীষার আরেকটা প্রবলেম যে ও ভেজিটেরিয়ান। ভেজিটেরিয়ানদের ক্ষেত্রে আমাদের যে এপিথেলিয়াম, নোজ, থ্রোট, এই এপিথেলিয়ামটা ভিটামিন ই এর অভাব হয়ে যায়, অ্যান্ড সেটার জন্য বারবার এফেক্টেড হয়। তো মনীষার ক্ষেত্রে আমি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার করেছিলাম, অ্যান্ড শি গেভ মি গুড রেজাল্ট। মনীষার জন্য এই ছিল আমার ট্রিক, स्टीम इनहेलेशन, कैप्सूल इवियन। मैं मनीषा भंडावत, मेरी एज 39 है एंड मैं विधान नगर में रहती हूँ। मेरे 2022 जनवरी में मुझे गले में दर्द हुआ था, तो हम जनरल फिजिशियन के पास गए थे क्योंकि ठंडा वेदर रहता है इसलिए। तो एक हफ्ते का दवाई लेने के बाद भी मेरा पेन कम नहीं हुआ। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि अपने को ईएनटी से किसी से सजेशन लेना चाहिए। मैं आशीष भंडावत, मनीषा भंडावत का हस्बैंड, 40 इयर्स ओल्ड। मैं ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड में सर्विस करता हूँ और ग्राफाइट कॉलोनी में घर है। तो जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी गले में, तो मैंने गूगल पे बेस्ट ईएनटी इन दुर्गापुर सर्च किया। तो मेरे को तानिया मैम का पूरा रेफरेंस दिखाया। मेरे को उसी पे कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स कहाँ वो देखते हैं, करते हैं, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जिससे वो एसोसिएटेड है, वो सब दिखाया। तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर कॉल अप किया।
कॉल अप किया तो उनके असिस्टेंट ने उठाया और मैंने अपॉइंटमेंट मांगा। तो मेरे को बोला गया कि भाई आपको जब सूटेबल हो आप बताइए, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। तो ऑफिस मेरी 5-6 बजे खत्म होती है, तो 6:30-7 बजे का मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया। तो जनवरी में लाइक मैम के पास हम 8 जनवरी को आए थे। तो जब हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ले लिया तो हम जिस दिन आए, मतलब फर्स्ट लाइक इंट्रोडक्शन ही मैम से इतना अच्छा था। जनरली किसी डॉक्टर से ऐसा नहीं मिलता है, इतना अपनापन था। तो उन्होंने जस्ट उस वक्त थोड़ा सा कोरोना का भी वो था, तो लाइक मैं भी मास्क में थी, मैम भी मास्क में थी, तो उतना तो उन्होंने टच वो नहीं होता है, बट फिर भी वे ऑफ टॉकिंग और मेरे उसको देखकर उन्होंने लाइक उनको समझ आ गया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो टॉन्सिल के साथ साथ मुझे लारेंजाइटिस हो गया था, तो वो मेरे वोकल को भी प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैम ने मुझे 10 डेज का दवाई दिया था मेडिसिन, एंड उसके साथ मेडिसिन बहुत कम थे, उसके साथ उन्होंने मुझे केटल स्टीम बताया था। उस केटल स्टीम से मुझे इतना इफेक्टिव हुआ कि लाइक फ्रॉम लास्ट 2 years में कंटिन्यू थोड़ा सा भी गले में पेन होने से वो लेती हूँ, एंड विदाउट मेडिसिन वो मेरा ठीक हो जाता है। इट वॉज लाइक सुपर ट्रीटमेंट इन 3 months। 3 months में लाइक मेरा गला बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। उन्होंने जो जिस हिसाब से मेडिसिन और वे ऑफ ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो 1 वीक के अंदर ही लाइक 50% ऑफ द सिम्टम्स हट गए थे, पेन बहुत कम हो गया था, और टोटल 3 months ये चला था, जो बहुत ही इफेक्टिव था, एंड इट वाज 100% क्योर। अभी मैं कुछ 15 दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन गई थी, तो लाइक ऐसा हुआ कि मेरे गले में बहुत ठंड लगी, एंड प्रॉपर केयर ना होने के कारण मुझे लाइक टॉन्सिल हुआ, एंड टॉन्सिल पक के लाइक इन्फेक्शन हो गया। तो वही 2 साल 22 के बाद मैं वापस आई अभी मैम के पास, नंबर सेव ही थे, कॉल किया, मुझे नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिला, एंड 7 days to 8 days के मेडिसिन के बाद अभी लाइक सिर्फ एक नोजल चल रहा है, नोजल नाक में लाइक मेडिसिन ले रहा है, बाकी कोई खाने की मेडिसिन नहीं है, एंड मेरा टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरे ये प्रॉब्लम्स के बाद मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर आपको बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, आप नेट पे सर्च करिए, जैसे हमें गूगल पे मिला। आप गूगल पे बेस्ट डॉक्टर किसी भी चीज का लिखेंगे, आपको जरूर गूगल दिखाता है, और आप 2-3 डॉक्टर्स से राय लेकर, सजेशंस लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट अपन को करवाना चाहिए आज के डेट में। एंड फॉर ENT, तानिया मैम इज द बेस्ट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, लाइक इतने लाइक डिलीवरी भी हुई एंड नॉर्मली फीवर एंड ऑल सब कुछ होता है, बट तानिया मैम जैसे डॉक्टर मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ में 39 एज में फर्स्ट टाइम मिले हैं, जो इतनी फ्रेंडली, इतनी होमली, लाइक कुछ भी होता है तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं मैम। मेरे फैमिली और मैंने आज तक खुद के लिए भी कई डॉक्टर से मिला हूँ, हर डॉक्टर का अपना एक अप्रोच है, एक वे है, लेकिन जब तानिया मैम के पास आए तो ऑलरेडी गले की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम थोड़े बहुत डरे हुए थे कि भाई ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं, वाइट पैचेस एंड ऑल। लेकिन जिस हिसाब से तानिया मैम ने हमको ऑब्जर्व किया और फिर उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, जो बताया हमें ट्रीटमेंट के थ्रू कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, वो मतलब हमें एक जैसे कुछ हो जाने से जो ट्रॉमा होता है उससे बाहर निकाला कि हाँ, नथिंग इज टू वरी, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, प्रॉपर मेडिटेशन एंड मेडिसिन से इट कैन बी क्योर्ड। नेक्स्टली एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, वाइफ को प्रॉब्लम हुई, मैंने गूगल खोला, मैंने सर्च किया, मेरे पास ऑप्शंस आ गए, बट ये गूगल ऑप्शन आज की डेट में बहुतों के पास है, लेकिन स्टिल देर आर मेनी पीपल्स जिनके पास ये गूगल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या कुछ बाय अदर मीन्स एक ब्रिज नहीं बन पा रहा फॉर दोज पेशेंट एंड तानिया मैम। तो कुछ ऐसा तानिया मैम करे टू फ्लरिश हर नेम, कि वो हर एक के दिमाग में रहे कि अगर ENT रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक नाम है जहां पे सारा सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ये जरूर मैं तानिया मैम को बोलना चाहूंगा कि कुछ इसके बारे में करे, कि उनका नाम बढ़े आगे। मेरे जो बिलोंगिंग्स, मेरे जो फैमिली मेंबर्स, जो मेरे नोन्स हैं, वहां तक तो मैं मैम को पहुंचा दूंगा कि उनके गले में, उनके ईयर, नोज या कुछ भी ENT रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो एक ही है, वहीं आपको जाना है। लेकिन मैं सबको नहीं जानता, उसके लिए मैम कुछ अप्रोच करें कि उनका नाम आगे बढ़े। थैंक यू।